بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ 48 دن کے لاک ڈاؤن کے بعد ہفتے میں 4 روز کے لیے شہر کی مارکیٹس اور بازار کھل گئے ہیں۔ انارکلی بازار، ہال روڈ سمیت دیگر مارکیٹس میں معمول سے زیادہ رش شہری خریداری کے دوران سماجی فاصلے کو نظر انداز کرتے رہے۔ 48 روزہ طویل لاک ڈاؤن کے بعد بلاخر شہر کی مارکیٹس اور بازار کھل گئے۔ پنجاب حکومت نے ہفتہ میں 4 روز مارکیٹس اور بازار کھولنے کی اجازت دے دی۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے کاروباری مراکز کا رخ کیا۔ تاجران کی اکثریت نے ماسک پہن رکھے تھے اور دکانوں میں سینیٹائزر بھی رکھے گئے۔ شہریوں کی اکثریت نے سرجیکل ماسک تو پہن رکھے تھے مگر کورونا سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کو یکسر نظر انداز کیا گیا۔ ہال روڈ اور انارکلی بازار میں بھی شہریوں کا خاصا رش نظر آیا۔ معاشی حالات کی ابتری کے باعث حکومت نے مارکیٹس اور بازار تو کھول دیے، اب گیند شہریوں اور تاجر برادری کی کورٹ میں ہے کہ وہ کورونا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں، جس سے کاروبار بھی چلے اور کورونا سے بھی بچا جا سکے۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ 48 روز کا طویل انتظار ختم ہوا۔ بلاخر شہر کے تمام ماڈل بازاروں میں کپڑوں، جوتوں اور کاسمیٹک سمیت دیگر دکانیں کھل چکی ہیں۔ دکانداروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی، شہر کے تمام ماڈل بازاروں میں کورونا خطرات کے پیش نظر بند کی گئی کاسمیٹکس، کپڑوں، جوتوں اور جویلری کی دکانیں 48 روز بعد کھول دی گئی۔ ریڈی میڈ کپڑوں کا کاروبار کرنے والے دکاندار حاجی امجد بھی کورونا کے باعث دکان بند ہونے سے معاشی طور پر بری طرح متاثر ہوئے۔ دکاندار حاجی امجد کا کہنا ہے کہ جمع پونجی سے مشکل سے 10 سے 15 روز گزارا ہوا، اس کے بعد وقت کیسے گزرا میں جانتا ہوں یا میرا رب۔ یہ جتنا ادھر کاروبار ہے، سیونگ اتنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بندہ 15-20 دن گزارا کر سکتا ہے، اس کے بعد تو پھر مشکل ہوئی ہے، بڑا مشکل وقت گزارا ہے۔ حکومتی احکامات پر دکانیں دوبارہ کھلنے سے حاجی امجد نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا، جو دکان سجا کر خریداروں کا انتظار کرنے لگا۔ کہتا ہے اللہ کی ذات سے پر امید ہوں خریدار ضرور آئیں گے۔ اللہ پاک بہتر کرے گا انشاءاللہ، کیونکہ کسٹمر تو ریگولر لگے ہوتے ہیں ہر شاپ کے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ کسٹمر آئیں گے، اب تو کاروبار اچھا چلے گا انشاءاللہ۔ ماڈل بازاروں میں سماجی فاصلے، ماسک اور سینیٹائزر سمیت دیگر احتیاطی تدابیر کو یقینی بناتے ہوئے تمام دکانیں کھول دی گئی ہیں، جس سے نہ صرف دکاندار بلکہ خریدار بھی خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرامین ٹیپو کے ہمراہ عثمان علیم، سٹی 42۔ ملک کی تاریخ میں طویل ترین عرصے تک کاروباری سرگرمیاں معطل رہنے کے بعد شہر میں مارکیٹس اور بازار کھل چکے ہیں۔ اسرا بازار میں لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد پہلا روزہ اور آج دوسرا روزہ ہے۔ خریداروں کا بے پناہ رش دیکھنے میں آیا ہے۔ خریداروں اور دکانداروں نے کاروبار کھلنے پر سکھ کا سانس لیا۔ شہر میں کرونا وائرس کی وجہ سے لگائے گئے لاک ڈاؤن کے باعث 48 روز ہر قسم کی کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں، جس سے تاجروں، ملازمین، مزدوروں نے بہت معاشی نقصان برداشت کیا۔ تاہم حکومت کی جانب سے کاروبار کی اجازت ملنے پر دکاندار اور تاجر خوش دکھائی دیے۔ اللہ کا شکر ہے جی، بازار کھلے ہیں، دیکھ لیں آپ کے سامنے لوگ آ بھی رہے ہیں اور ہم بھی خوش ہیں اس چیز سے کہ شکر اللہ کا کہ اتنی دیر کے بعد دکانیں کھل گئی ہیں تو لوگ آئے ہیں، لوگ اپنے بچوں کا رزق کما کے لے کے جائیں گے یہاں سے۔ بازار میں آئے ہیں، کوئی رونق دیکھی ہے، گھر میں بیٹھ کر بہت ہی زیادہ پریشان، کام کچھ بھی نہیں، بالکل بھی حساب کتاب نہیں بن رہا تھا۔ اچرا بازار میں خواتین خریداروں کا رش لگ گیا، جنہیں دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ خواتین اتنے روز بغیر شاپنگ کیے گھروں میں کیسے بیٹھی رہی ہوں گی، جبکہ خواتین کا کہنا تھا کہ ضرورت کی خریداری کے لیے نکلی ہیں۔ شاپنگ کے بغیر نہیں رہ سکتی خواتین، بہت ضروری ہے، بچوں کے لیے شاپنگ بہت ضروری ہے، اس لیے بازار کھلنے بہت ضروری ہے۔ مارکیٹیں کھلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پیسے ہوں گے تو ہم شاپنگ کریں گے۔ بازاروں میں ماسک پہننے پر توجہ تو دی جا رہی ہے مگر سماجی فاصلے کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا، جس سے وائرس پھیلنے کا خدشہ بدستور موجود ہے۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ وقار گمن، لاہور۔ مارکیٹس اور بازار کھلنے پر سٹیوں نے مناوا کلبس، لائن نفریس، لائسنسنگ سٹاف، ڈرائیونگ سکول اور موٹر سائیکل اسکواڈ مارکیٹس اور بازاروں میں تعینات کر دیے ہیں۔ چیف ٹریفک آفیسر سید حماد عابد کا کہنا ہے کہ شہر کی 50 مارکیٹوں اور بازاروں میں اضافی نفری تعینات کی گئی ہے۔ مارکیٹوں اور بازاروں میں 416 وارڈنز، 65 اسسٹنٹ اور 76 پیٹرولنگ افسران تعینات کیے گئے ہیں۔ سید حماد عابد نے کہا کہ ٹریفک وارڈن مارکیٹوں کے قریب تجاوزات، بھکاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن کریں گے۔ غلط پارکنگ کے خلاف بھی بھرپور کارروائی ہوگی۔ جزوی لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کے بعد ٹریفک پولیس کی نفری میں اضافہ کیا گیا۔ سیکنڈ شفٹ میں وارڈنز کی تعداد بڑھا دی گئی تاکہ افطاری کے وقت شہریوں کو مسئلہ نہ ہو۔ عید سے قبل شہر سے باہر جانے والے ٹرانسپورٹ کھولنے کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ٹرانسپورٹ کھولنے کی تجویز وزیر اعلیٰ کو دے دی گئی ہے۔
لاک डाउन में नरमी के बाद ईद से पहले शहर से बाहर जाने वाली ट्रांसपोर्ट खोलने के हवाले से तजावीज़ और SOPs वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को अरसाल कर दिए गए। SOPs में तजवीज़ किया गया है कि मुसाफिर गाड़ियों में बैठने से पहले मास्क, ग्लव्स पहने और अपने पास सैनिटाइजर भी रखेंगे। मुसाफिरों को खांसते और छींकते हुए टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे। एक दूसरे से हाथ मिलाने से गुरेज किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स गाड़ियों में जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे करेंगे। सवारी बिठाने और उतारने के बाद गाड़ी में एयर कंडीशन नहीं चलाया जाएगा। गाड़ी की खिड़कियों को ताज़ा हवा के लिए खुला रखा जाएगा। मुसाफिरों को एक दूसरे के साथ साथ नहीं बिठाया जाएगा। ड्राइवर हजरात भी मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे। बस को सवारियों से भरा नहीं जाएगा। ताहम ट्रांसपोर्ट खोलने का हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब मुशावरत से करेंगे। कज़ाफी बट, सिटी 42। शहर में बसेस, वैन्स और मेट्रो समेत पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद है, लेकिन चिंची और ऑटो वर्कशॉप्स का इस्तेमाल बढ़ चुका है। आमदोरफ्त के लिए शहरी बड़ी तादाद में रिक्शों पर सफर करने लगे हैं। कोरोना के खतरात के पेश नज़र शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताहाल बंद है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से ऑटो और चिंची रिक्शों पर लोड बढ़ गया। शहरी बड़ी तादाद में चिंची और ऑटो रिक्शों को बतौर ज़राए आमदोरफ्त इस्तेमाल करने लगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर करने वाले शहरियों का कहना है कि गरीब की तमाम सवारियां बंद हैं। शुक्र है चिंची और ऑटो रिक्शे चल रहे हैं, जिन्हें इस्तेमाल करके मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। अगर चिंची ना होवे तो आवाम किधर जाएगी? दसो ना, ऑटो रिक्शा नहीं करा सकते, जेडे 5-10 बजे सफर करते हैं तो गरीब वास्ते रिक्शा ही है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि लॉकडाउन के बायस माशी हालात बदतर हो चुके हैं। जो सवारी आती है मुनासिब किराया लेकर मंजिल मकसूद तक पहुंचा देते हैं। सवारियां तो भाई बिल्कुल कम है इस वक्त पे, कारोबार के हालात ख़त्म है। जो सवारी आ रही है वो यही कह रही है पैसे तो है नहीं, कोई 10-20 हैं, हमें वहाँ पे छोड़ दो, छोड़ देते हैं। शहर में चलने वाली चिंची और ऑटो रिक्शों में कोरोना हिफाजती SOPs और समाजी फासले पर अमल दरामद कराना मुमकिन दिखाई नहीं देता, मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से शहरी इन्हीं पर सफर करने पर मजबूर हैं, जिससे रिक्शों की डिमांड में इजाफा हो गया है। कैमरामैन टीपू के हमरा उस्मान अलीम, सिटी 42। पंजाब में कोरोना वायरस के 475 नए केसेस, तादाद 11,482। लाहौर में मजीद 262 शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि शहर में मुसद्दका मरीजों की तादाद 5,452 हो चुकी है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक शहरों में सबसे ज्यादा लाहौर में कोरोना वायरस के 262 नए मरीज सामने आए हैं। लाहौर में 5,452 कोरोना के मुसद्दका मरीज हैं। कोरोना वायरस के बाद पंजाब में 197, जबकि लाहौर में 69 मौत हो चुकी हैं। कोरोना में मुब्तला 323 अफराद सेहतयाब हो चुके। अब तक 1,30,546 टेस्ट किए जा चुके हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने आवाम से अपील की है कि हिफाजती तदाबीर अख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। कोरोना वायरस की अलामत जाहिर होने पर फौरन 1033 पर राब्ता करें। सूबे भर में कोरोना वायरस से पुलिस सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही है। लाहौर समेत पंजाब भर से 2 दिन में मजीद 68 केसेस सामने आए हैं। मुसद्दका अहलकारों की तादाद 211 हो चुकी है, जबकि 149 मुश्तबा अहलकारों को करंटीना सेंटर मुंतकिल किया गया है। पंजाब पुलिस में कोरोना वायरस के तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अब तक 7700 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन का कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया गया है, जिसमें 211 पुलिस अफसरान व अहलकारों का नताइज मुस्बत आए हैं। मसूल होने वाले नताइज के मुताबिक 3500 से ज्यादा पुलिस अफसरान व अहलकारों की रिपोर्ट नेगेटिव, जबकि 3900 के करीब मुलाजमीन की रिपोर्ट्स के नताइज का इंतजार है। पंजाब पुलिस के 149 अफसरान व अहलकारों को करंटीना सेंटर्स मुंतकिल किया गया है। अब तक 58 पुलिस मुलाजमीन मोहलक मरज से सेहतयाब हो चुके हैं। IG पंजाब ने दिन ब दिन बढ़ते हुए केसेस की वजह से दफ्तर के अमले का टेस्ट करवाने का अमल शुरू करवा दिया है। मुतासरा एहलकारों को वेलफेयर फंड से 25,000 फीकस जारी करने के अहकाम भी जारी किए गए हैं। अली शाही, सिटी 42। पंजाब में कोरोना वायरस की वबा से सूबाई खसारा बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गया है। सूबे को 6 अरब 64 अरब रुपए के खसारे का सामना है। महकमा खजाना पंजाब ने सूबाई खसारे पर आदाद-ओ-शुमार से मुतल्लिक हुकूमत को भी आगाह कर दिया है। पंजाब में माली खसारा आए रोज बढ़ता जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने इसकी वजह कोरोना को करार दिया है। कोरोना से पंजाब में अखराजात बढ़ गए हैं और विफाक से कौमी मालियाती कमीशन के तहत फंड भी मुकम्मल नहीं मिल सके। रवां साल में पंजाब हुकूमत को विफाक से 10 खरब कौमी मालियाती कमीशन के तहत मिलना था, लेकिन महकमा खजाना हुकाम के मुताबिक पंजाब हुकूमत को वो सूबाई शेयर भी मुकम्मल नहीं मिल सका। पंजाब को रवां साल 10 खरब में से सिर्फ 5 खरब 38 अरब रुपए का शेयर मिल सका। पंजाब हुकूमत अपनी महसूलात की मद में सिर्फ 1 खरब 26 अरब ही जमा कर सकी, जबकि महसूलात का हदफ 3 खरब 50 अरब से ज्यादा मुकर्रर किया गया था। महसूलात में कमी की असल वजह कोरोना वबा से कारोबार बंद होने पर हुकूमत का रवां साल टैक्स से छूट देना है।
मुसाफिर ट्रेन ऑपरेशन बंदिश। महकमा रेलवे आमदन का हुकूमती हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। रवा माली साल के 10 माह के अख्तिताम पर रेलवे को हदफ से 5 अरब 23 करोड़ रुपए कम आमदनी हुई। रेलवे के अदाद शुमार के मुताबिक जुलाई तक अप्रैल रेलवे आमदनी 42 अरब 20 करोड़ रुपए रिकॉर्ड की गई। 10 माह में आमदनी का हुकूमती हदफ 47 अरब 43 करोड़ रुपए था। माली साल के पहले 10 माह के इख्तिताम पर रेलवे को तमाम मिदाद में हदफ से कम आमदनी हुई, जबकि जुलाई तक मार्च मुसाफिरों की मद में रेलवे को हदफ से 4 अरब 41 करोड़ रुपए कम आमदनी हुई। मुतफरक कोचित आमदनी में रेलवे को 38 करोड़ 11 लाख रुपए कमी का सामना करना पड़ा। गुड सेक्टर में रेलवे आमदनी हदफ से 20 करोड़ 61 लाख रुपए कम रही। सनडरी की मद में 23 करोड़ 25 लाख कम आमदनी रिकॉर्ड की गई। जराये के मुताबिक अगर रवा माह ट्रेन ऑपरेशन बहाल नहीं होता तो रेलवे को मजीद 5 अरब रुपए खसारे का सामना करना पड़ेगा। रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन के लिए दरकार फंड भी खत्म होने का इम्कान है। PIA पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरियों के लिए 11 से 17 मई तक 9 परवाजें ऑपरेट करेगी। लाहौर से 2 जबकि इस्लामाबाद से 7 खुसूसी परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। PIA ने शेड्यूल जारी कर दिया है। PIA की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक परवाजें पाकिस्तान से लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए ऑपरेट की जाएंगी। पहली परवाज 11 मई को इस्लामाबाद से लंदन जाएगी, 12 मई को इस्लामाबाद से मैनचेस्टर और 13 मई को PIA लाहौर से लंदन तक की खुसूसी परवाज चलाएगी। 14 मई को इस्लामाबाद से लंदन और मैनचेस्टर के लिए 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। 15 मई को लाहौर से मैनचेस्टर के लिए, 16 मई को इस्लामाबाद से मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए 2 खुसूसी परवाजें और 17 मई को PIA की खुसूसी परवाज इस्लामाबाद से लंदन जाएगी। PIA इंतजामिया के मुताबिक मुसाफिरों की सहूलत के लिए टिकट्स ऑनलाइन फरोख्त की जाएंगी। PIA का खुसूसी तैयारा चीन की जानिब से अतिया करदा कोरोना से मुतल्लिका इमदादी सामान लेकर लाहौर पहुंच गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर एयरपोर्ट पर इमदादी सामान वसूल किया। कहा, चीन ने हर आजमाइश में पाकिस्तान के अवाम की मदद की है। चीन ने 100 मिलियन रुपए मालियत का इमदादी सामान पंजाब हुकूमत को अतिया किया है। चीनी सूबे शेंडोंग, जियांगसुआ और नंगजिया की जानिब से हिफाजती लिबास और जरूरी सामान का अतिया मकबूला पाक चीन ताल्लुकात का मजहर है। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि मुश्किल की घड़ी में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स भिजवाने पर चीन की हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाब रिश्तों में बंधी है। उन्होंने कहा कि चीन की जानिब से मिलने वाला सामान कोरोना वायरस से बचाव के लिए फ्रंट लाइन पर मौजूद डॉक्टर्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स, स्टाफ को दिया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि लॉकडाउन में नरमी का मकसद मईशत के रुके पहिए को हरकत में लाना, दिहाड़ीदार तबके को रोजगार फ्राहम करना है। पंजाब के अवाम, ताजे बरादरी और सनतकारों से अपील करता हूँ कि सब एहतियाती तदाबीर और SOPs पर अमल करें। उन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की खिदमात को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इस मौका पर चीनी कौंसल जनरल लॉन्ग डंग बिन ने कहा कि पाकिस्तान हमारा बाएतमाद दोस्त मुल्क है। मुश्किल की घड़ी में पाकिस्तानी भाइयों की मदद करना हमारा फर्ज है। इस मौका पर चीन के कौंसल जनरल लॉन्ग डंग बिन, सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, चीफ सेक्रेटरी और मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। लाहौर में नए सफाई के निज़ाम के लिए ठेका देने की पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। मौजूदा तुर्क कंपनी समेत कोई भी गैर मुल्की कंपनी अहल नहीं होगी। सिर्फ मुल्की कंपनीज को टेंडर्स जमा करवाने की इजाज़त होगी। महकमा बल्दियात ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के ज़रिए इंतज़ाम सफाई का निज़ाम तब्दील करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक नए निज़ाम के लिए ठेका देने की पॉलिसी भी तब्दील की जाएगी। मौजूदा तुर्क कंपनी समेत कोई भी गैर मुल्की कंपनी टेंडर जमा करवाने की अहल नहीं होगी। सिर्फ मुल्की कंपनीज को टेंडर्स जमा करवाने की इजाज़त दी जाएगी, जिसके लिए आइंदा चंद रोज में ख्वाहिशमंद कंपनी से दरखास्तें तलब की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने सफाई के नए निज़ाम और ठेके की पॉलिसी तब्दील करने की मंजूरी दी है। नादरा सेंटर्स खुले 8 रोज हो चुके हैं, मगर समाजी फासला बरकरार रखने के SOPs पर अमल दरामद नहीं हो सका है। पीको रोड नादरा सेंटर में साइलिन एक दूसरे के साथ जुड़कर कितारों में खड़े नाकिस इंतजामात का रोना रोते रहे। ये नादरा सेंटर पीको रोड है, जहां साइलिन समाजी फासला बरकरार रखे बगैर कई घंटों से कितारों में खड़े हैं। नादरा का कोरोना से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद महज दावा ही साबित हुआ है। साइलिन कहते हैं कि सिर्फ सिफारिश के साथ आने वालों को पिछले दरवाजों से दफ्तर में दाखिल किया जा रहा है। 8:30 बजे तक खलोते हैं जी, सिफारशी बंदे जा रहे हैं अंदर। पीको रोड नादरा सेंटर में धक्कम पेल का सिलसिला भी जारी रहा। बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए नादरा सेंटर आने वाले साइलिन गैर मौसर इंतजामात का रोना रोते रहे। नादरा सेंटर की कितारों में ऐसी बेवा खवातीन भी मौजूद थी जिनके लिए इमदादी रकम उनके मरहूम शोहरों के नाम से भिजवा दी गई। बेवा खातून बुशरा बीबी ने बताया कि इमदादी रकम उनके मरहूम शोहर के नाम पर आ गई। डेथ सर्टिफिकेट दिखाया लेकिन रकम नहीं मिली। अब वो मरहूम शोहर के डेथ सर्टिफिकेट की तस्दीक कराने आई हैं। मेरे नाम पे पैसे आए
ਤੇ ਉਹ ਡੈਥ ਉਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹੇ ਬਈ ਉਹ ਸੈਨ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान रांझा की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। कहना गला मंडी से ज़ख़ीराशुदा 2200 गंदम की बोरियां बरामद की गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने गला मंडी कहना में अचानक छापा मारा। 2200 गंदम की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने कहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को किसी सूरत मुआफ़ी नहीं दी जाएगी। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस और बाबरकत माह में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुर्तकिब अफराद को कोई रियायत नहीं मिलेगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। शहबाज ततला केस में मरकज़ी मुल्ज़िम SSP मुफक्खर अदील के गिर्द घेरा मज़ीद तंग। लाहौर पुलिस की जानिब से तैयार करदा चार्जशीट विफाक को भिजवा दी गई है। SSP मुफक्खर अदील की जानिब से अपने करीबी दोस्त एडवोकेट शहबाज ततला को कत्ल कर दिया गया था, जिस पर पुलिस ने नसीराबाद थाने में दर्ज शहबाज ततला के अगवा के मुकदमे में कत्ल की दफात शामिल करते हुए मुफक्खर अदील की गिरफ्तारी अमल में लाई, जिसके बाद चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया गया। तहम एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से SSP के खिलाफ कोई महकमाना कार्रवाई शुरू न की जा सकी, क्योंकि मुफक्खर अदील की चार्जशीट विफाक को नहीं भिजवाई गई थी। तहम लाहौर पुलिस ने अब चार्जशीट IG ऑफिस को भिजवा दी है। IG ऑफिस ने SSP के खिलाफ चार्जशीट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को भिजवाई है ताकि महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जा सके। चार्जशीट में लिखा गया है कि मुफक्खर अदील ने शहबाज ततला को कत्ल करके लाश को तेजाब में डालकर तल्फ किया था। लाहौर हाई कोर्ट में कोरोना से हिलाक होने वालों की तदफीन के लिए अलहदा कब्रिस्तान मुख्तस करने की दरखास्त पर सुनवाई हुई। पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया है। अदालत ने दरखास्त गुजार को 15 मई को जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी है। जस्टिस किलू रहमान खान ने शहरी सैयद हुसनैन हैदर समेत दीगर की दरखास्त पर सुनवाई की। दरखास्त गुजार की जानिब से सैयद कमाल हैदर एडवोकेट ने इत्तला दिए। पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जवाद याकूब ने जवाब जमा करवाते हुए दरखास्त हरजाने के साथ खारिज करने की इस्तदा की। ताहम अदालत ने हुकूमत की फौरी दरखास्त खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दरखास्त गुजार वकील सैयद कमाल हैदर ने पंजाब हुकूमत और सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोरोना से मुतासरा मरीजों को आम शहरियों से अलहदा करंतना किया जाता है। कोरोना से हिलाक होने वालों को आम कब्रिस्तान में दफन किया जा रहा है। ज़ाती ज़मीनों पर कायम कब्रिस्तानों में भी कोरोना से हिलाक होने वालों की तदफीन की जा रही है। कराची में कोरोना से हिलाक होने वालों की तदफीन के लिए 5 अलहदा कब्रिस्तान मुख्तस हैं। बैनुल अक़वामी माहिरीन के मुताबिक मुतासरा मरीजों के हिलाक होने के बाद कोरोना वायरस के असरात रहते हैं। गैर मुतासरा इलाकों में मुतासरीन की तदफीन से वहाँ भी कोरोना वायरस फैलने के खदशात हैं। इस्तदा है कि अदालत कोरोना से हिलाक होने वालों की तदफीन के लिए ज़िलाई सतह पर अलहदा कब्रिस्तान मुख्तस करने का हुक्म दे। कोरोना वायरस से हिलाक होने वालों की तदफीन से मुतल्लिक बनाए गए तरीक़ेकार पर अमल दरामद का हुक्म भी दिया जाए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब जवाद याकूब ने अदालत को आगाह किया कि तमाम कानूनी तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए कोरोना से हिलाक होने वालों की तदफीन की जाती है। दायर की गई दरखास्त बिलाजवाज़ है, उसे खारिज किया जाए। जस्टिस अली बाकर नजफी ने नए कमरा अदालत में वीडियो लिंक के जरिए केसेस की समाअत का आगाज कर दिया है। वीडियो लिंक के जरिए समाअत का आगाज तो हो चुका है, ताहम फ्रीकैन को कासिद के जरिए ऊंची आवाज में तलब करने का सदियों पुराना तरीक़ाकार ताहाल राइज है। लाहौर हाई कोर्ट में वक्त गुजरने के साथ साथ मुकदमात की समाअत का तरीक़ाकार भी तब्दील होता जा रहा है। अब अदालतों में IT निज़ाम से इस्तेफादा करते हुए वीडियो लिंक्स के जरिए समाअतों का आगाज किया जा रहा है। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कोर्ट रूम नंबर 7 में वीडियो लिंक के जरिए मुकदमात की समाअत का आगाज कर दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की अदालत भी डिजिटल कोर्ट होने का एजाज हासिल कर चुकी है। वकला ने अदालतों में वीडियो लिंक के तरीक़ाकार को खुश आइंद करार दिया है। वीडियो लिंक का जो एक सिस्टम जो है स्टार्ट हुआ है, ये बहुत एक खुश आइंद अमल है। जो वकला हैं वो अपने घरों से या अपने दफातर से बैठ के प्रोसीडिंग जो है उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। अदालतों में समाअत के लिए IT निज़ाम से इस्तेफादा हासिल करने के इक़दामात तो किए जा रहे हैं, लेकिन मुकदमात के फ्रीकैन को समाअत के मौका पर बुलाने का तरीका सदियों पुराना है, जो आज भी राइज है। कासद ऊंची आवाज में फ्रीकैन को अदालत तलबी की आवाज लगाता है और बाहर खड़े साइलिन इसकी आवाज को बड़ी तवज्जो से सुनते हैं। वकला और साइलिन कासद के जरिए ऊंची आवाज में तलबी से मानूस हो चुके हैं। उनका कहना है कि अदालत की ऊंची आवाज में तलबी की शनाख्त को बरकरार रहना चाहिए। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42।
अंदरून लाहौर टिब्बी सिटी में 3 मंजिला मकान जमी बोस हो गया। मलबे तले दबकर एक शख्स जान बहक। इमदादी टीमों ने 3 घंटों की जिद्दोजहद के बाद जमीन बोस होने वाले मकान से मुतसिल इमारतों को क्लियर करार दे दिया। अंदरून शहर सैद मिठा बाजार में एक और 3 मंजिला मखदूश मकान जमीन बोस हो गया। मलबे तले दबकर इमरान नामी शहरी जिंदगी की बाजी हार गया। हादसे की इतला मिलने पर रेस्क्यू की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं और ऑपरेशन शुरू किया। 3 घंटों की तवील जद्दोजहद के बाद मलबे तले दबे शख्स की लाश निकाल ली गई। यहाँ पे आना है और उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देना है, इसके हवाले से वो मजीद बेहतर बता सकेंगे कि आया उनको फॉर्मली कोई कंप्लेंट गई है इस हवाले से या नहीं गई है। जमीन बॉस होने वाले मकान के मुतासरीन का कहना था कि ज़ेरे तमीर मकान को हटाने बारे वॉल सिटी अथॉरिटी को आगाह किया गया था, जबकि वाकया वॉल सिटी की गफलत के बायस पेश आया। हमने उन्हें कहा कि आप मत गिराएं, इसकी वजह से हमारा घर को और दीगर जो मकान आते हैं इधर उधर के उनको नुकसान होगा, लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। 3-4 दिन बाद रोज हम जाके उन्हें कहते थे, लेकिन इसके बावजूद वो तलकलामी होती थी, बावजूद इसके उन्होंने कुछ नहीं किया। पुलिस का कहना है कि वॉल सिटी ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। अगर मुतासरा खानदान की जानब से कोई दरखास्त मौसूल हुई तो पुलिस कार्रवाई करेगी। कैमरामैन मलिक खालिद के हमरा आबा चौधरी, सिटी 42। सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है कि शहबाज शरीफ कोरोना से लड़ने का नारा लगाकर पाकिस्तान आए। आलम यह है कि जिस दिन से पाकिस्तान आए हैं एक कमरे में कैद हैं। अलहमरा में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अलहमरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि साबित हो गया शहबाज शरीफ बुज़दिल आला है। शहबाज शरीफ जरूरत पैदा करें, कोरोना के खिलाफ मैदान में आए। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की लंदन से वापसी का कोई फायदा नहीं, उन्हें तो कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। वज़ीर इत्तलात का कहना था कि अपोजिशन का इजलास बुलाने का मुतालबा था, लेकिन अपोजिशन लीडर ने ही छुट्टी ले ली। उन्होंने कहा कि इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के तहत 25 लाख मुस्तहकीन को 12,000 रुपए फी खानदान दिए जाएंगे। रकूम की अदायगी बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद शफाफ तरीके से की जाएगी। फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि कोरोना मुतासिरीन की सहूलत के लिए सूबे भर में इंसाफ इमदाद प्रोग्राम के 6,000 से ज्यादा कैंप लगाए जाएंगे। पंजाब असम्बली ने मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 2020 और दही पंचायत नेबरहुड काउंसिल तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिए हैं। ऐवान में पंजाब में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की गूंज है। अपोजिशन ने कोरोना के दारू के लिए कौमी पॉलिसी न बनाए जाने पर जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया है। डॉक्टर यास्मीन राशि ने सूबे भर में 10,000 नए डॉक्टर्स भर्ती करने की नवीद सुनाई है। पंजाब असम्बली का इजलास पैनल ऑफ चेयरमैन मियां शफी की ज़ेर सदारत 1 घंटा 17 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ईवान को बताया कि हमारे पास टेस्ट करने वाली किट्स की सलाहियत मुख्तलिफ है, जिससे 100% दुरुस्त रिजल्ट आना नामुमकिन है। पिछले 7 साल से डॉक्टरों की रुकी हुई तरक्की बहाल और सूबे भर में 10,000 नए डॉक्टर भर्ती करेंगे। अपोजिशन रुकन ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले पर सियासत नहीं कर रहे, हुकूमत कोरोना के बजाय अपोजिशन से निपट रही है। लेकिन रुकन अवैस लगारी ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत कोरोना के तदारक के लिए कौमी हिकमत अमली बनाने में नाकाम हुई। मावे आजम ने कहा कि रियासत मदीना का नारा लगाने वालों ने एक बजट भी सूद से पाक नहीं दिया। ईवान में इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई जब हुकूमती रुकन अहमद शाह खगा ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से हम सलाम और तहजीब के करीब हो गए हैं। पंजाब असम्बली के इजलास में सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत ने मजमूई ज़ाब्ता फौजदारी 2020 और दही पंचायत और नेबरहुड काउंसिल 2020 तरमीमी बिल पेश किए, जिसे अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया। एजेंडा मुकम्मल होने पर पैनल ऑफ चेयरमैन मियां मोहम्मद शफी ने इजलास मंगल की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ अली अकबर, सिटी 42। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ को अमरीकी सफारतखाने के नाज़िमुल अमूर सफीर पॉल डब्ल्यू जोन्स का खत कहते हैं कि मुश्तरका कोशिशों से कोरोना को शिकस्त देंगे। अमरीकी सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर सफ़ीर पॉल डब्ल्यू जोन्स के खत में शहबाज शरीफ को रमज़ानुल मुबारक की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। खत में कहा गया कि सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाल ही में कोरोना से निपटने के लिए इश्तराकी अमल पर बात की है। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन जारी है, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तानी नादार तबकात के लिए 50 लाख अमरीकी डॉलर की इमदाद एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम में दी है। ये इमदाद 70,000 खानदानों को खुराक और अशिया ज़रूरिया की फरहमी के लिए दी गई है, जबकि ग़िज़ा की कमी के शिकार बच्चों के लिए अमेरिका ने 336 मेट्रिक टन खुराक फराहम की। पॉल जोन्स ने खत में कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ मुश्तरका जंग के लिए अमेरिका ने $15 मिलियन की नई फंडिंग का वादा किया है। इजाफी इमदाद की फरहमी के लिए पाकिस्तानी हुकाम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पॉल जोन्स ने मुश्किल हालात से मुतासिर होने वाले पाकिस्तानियों के लिए नेक तमन्नाओं और हमदर्दी का इजहार भी किया। उमर असलम, सिटी 42। लॉकडाउन के बायस बंद की गई सनतें खोलने का मामला है। सेक्रेटरी इंडस्ट्री कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का कहना है कि इंडस्ट्री खोलने के लिए कोई अलहदा नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सेक्रेटरी इंडस्ट्री कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान खोली जाने वाली इंडस्ट्रीज खुलेंगी।
खोली जाने वाली सनतों को हुकूमत के SOPs पर अमल दरामद करना होगा। उन्होंने बताया कि 254 सनतों को खिलाफ वर्जी पर वार्निंग जारी की जा चुकी है। सेक्रेटरी इंडस्ट्री का कहना था कि वार्निंग के बाद अगले मरहले में सनतें खिलाफ वर्जी पर सरबमोहर होंगी। सनतों को सरबमोहर करने का काम भी कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर्स करेंगे। हुकूमत के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक इंडस्ट्रीज खोली गई हैं। शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए पंजाब हुकूमत का विफाक से मुशावरत का फैसला। सूबाई वज़ीर सनत ने शॉपिंग मॉल्स एसोसिएशन को विफाकी हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी करवा दी है। सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल से ऑल पाकिस्तान शॉपिंग मॉल एसोसिएशन के वफ्द ने मुलाकात की। एसोसिएशन ने मुलाकात में लॉकडाउन के बायस शॉपिंग मॉल्स की बंदिश के फैसले पर नजरसानी करने, कारोबार खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। सूबाई वज़ीर सनत असलम इकबाल का कहना था कि शॉपिंग मॉल्स को खोलने के हवाले से विफाकी हुकूमत से बात करूंगा। हुकूमत ने गैर मामूली हालात में गैर मामूली फैसले किए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में नरमी का फैसला लोगों की मुआशी मुश्किलात के पेश नज़र किया गया है। इंशाअल्लाह जल्द मुश्किल हालात से निकलेंगे और मुकम्मल कारोबारी सरगर्मियां बहाल होंगी। हुकूमत ने अवाम के लिए लॉकडाउन में नरमी की। SOPs पर अमल दरामद न हुआ तो अगली बार मजीद सख्त लॉकडाउन होगा। सूबाई वज़ीर लेबर अंसर मजीद खान का इंसदादे कोरोना के हवाले से फैक्ट्रीज के दौरे पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद खान ने बिजली मीटर बनाने वाली KBK फैक्ट्री और एक्सपोर्ट गारमेंट्स बनाने वाली चीनी फैक्ट्री चैलेंज अपैरल का दौरा किया। इस मौके पर DG लेबर फैसल निसार चौधरी, डायरेक्टर लेबर साउथ ज़ैगम अब्बास मजर और नदीम अख्तर और दीगर अफसरान हमरा थे। वजीर मेहनत और इंसानी वसाइल अंसर मजीद खान का कहना था कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद करके ही कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाया जा सकता है। मजदूरों को उनका खोया हुआ हक दिलवाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सनती कारकुनान को मौजूदा सूरत हाल में महफूज और सेहतमंद माहौल मुहैया करने की यकीन दहानी कराते हैं। आइंदा भी सनतों के सरप्राइज विजिट किए जाएंगे। सनतों ने कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना किया तो मजीद सख्त लॉकडाउन होगा। ये हमारा फर्ज बनता है चीफ मिनिस्टर साहब की खासतौर पर रहनुमाई के अंदर उनके इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये विजिट्स हुए हैं। ये विजिट्स रुकेंगे नहीं, जब तक ये कोरोना है तब तक ये विजिट्स जारी रहेंगे। तमाम तर इंडस्ट्री में हम SOPs जो हैं उस पर 100% उनके ऊपर अमल करवाएंगे। सूबाई वजीर लेबर का कहना था कि DG लेबर सनती इंस्पेक्शन की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। महकमा लेबर के अफसरान की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है, जिसमें मजीद बेहतरी लाई जाएगी। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा, साउथ भट्ट, लाहौर। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने फीस सेंटर में टेक्नो मोबाइल की जानिब से कोविड-19 आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि हुकूमत ने एतमाद किया है कि ताजिर SOPs पर अमल दरामद करते हुए कारोबार करेंगे। टेक्नो मोबाइल की जानिब से पाकिस्तान में मोबाइल बिजनेस की बहाली के लिए कोविड-19 आगाही मुहिम का आगाज किया गया, जिसकी इफ्तिताही तकरीब हफीज सेंटर में मुनक्किद हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और टेक्नो के सेल्स डायरेक्टर अदील ताहिर और मुजफ्फर पराचा ने खुसूसी शिरकत की। गवर्नर पंजाब कहते हैं हुकूमत ने ताजरों पर एतमाद करके कारोबार की इजाजत दी। ये इतना बड़ा रिस्क और इतना बड़ा आप जो मार्केट वाले हैं, हुकूमत ने आप पे एतमाद किया है कि आप SOPs को फॉलो करेंगे, आप अपने कस्टमर जो हैं उनको डिसिप्लिन रखेंगे। टेक्नो के डायरेक्टर सेल्स अदील ताहिर कहते हैं टेक्नो हुकूमती SOPs के मुताबिक तमाम मार्केट्स में डिसइंफेक्शन गेट्स लगा रही है। एज ए रिस्पॉन्सिबल कंपनी गवर्नमेंट ने SOPs दी थी कि मार्केट खोलने के लिए सर्टन प्रोटोकॉल्स और लोगों की सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने 1,20,000 मास्क चाइना से मंगवाए, जो कि आज हम तमाम मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा हम ने 32 डिसइंफेक्टेंट गेट्स बनवाए, जो पाकिस्तान की जितनी तमाम बड़ी मार्केट्स हैं जैसे कि हफीज़ सेंटर, पेशावर से लेकर कराची तक, आज हम वहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। CEO एयरलिंक मुजफ्फर पराचा कहते हैं कि हुकूमत के मशकूर हैं जिन्होंने हमें दोबारा कारोबार करने की इजाज़त दी। मैं आज तय दिल से अदील साहब का, मलिक साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आज हम मार्केटें खोलने के काबिल हुए, और मेरा सबसे गुजारिश है कि तमाम SOPs को फॉलो किया जाए। टेक्नो की जानिब से मोबाइल बिजनेस की बहाली पर मुल्क भर की मोबाइल मार्केट्स में 1,20,000 हिफाजती मास्क और 32 डिसइंफेक्शन टनल्स इंस्टॉल कराई जाएंगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। तवील लॉकडाउन के बाद हेयर ड्रेसर और सैलून खुलने से लोगों ने भी सुख का सांस लिया है। किसी ने बाल कटवाए तो किसी ने दाढ़ी की तराश खराश करवाई।
कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन किया गया, जिसकी जद में आकर हेयर सैलून भी बंद हो गए। तकरीबन 50 रोज हुजामों की दुकान बंद रहने से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। किसी की दाढ़ी बढ़ गई तो किसी की जुल्फें, और कोई सफेद बालों को कलर कराने के लिए फिक्रमंद रहा। सूरत हाल ऐसी हो गई कि लोगों की पहचान करना भी मुश्किल हो गई थी। हुकूमत के ऐलान के बाद दुकानें खुलते ही लोगों ने सैलून का रुख किया और बढ़ती जुल्फों की तराश खराश कराई। 2 माह के बाद ये शॉप्स वगैरह दोबारा ओपन हुई हैं। इस अरसे के दौरान में काफ़ी मुश्किलात पेश आई हैं, क्योंकि हेयर ड्रेसिंग जो है मेरे ख्याल से वो एसेंशियल्स में से है। सो अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम रखने के लिए यू हैव टू कम हेयर। सो अभी हमें अच्छा लग रहा है कि ये एक्टिविटी दोबारा रिज्यूम हो गई है। बार्बर मोहम्मद सलीम का कहना था कि वो मुख्तात होकर SOPs के मुताबिक काम कर रहे हैं। ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। हम आज तकरीबन 51 डेज के बाद जो है ना शॉप पे आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं उसके ऊपर पूरा अमल कर रहे हैं, उनकी SOPs पे अमल कर रहे हैं। बार्बर शॉप्स खुलने पर जहां शहरियों ने सुख का सांस लिया, वहीं हुजाम भी रोजगार बहाल होने पर खुश दिखाई दिए। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ वकार गुमन, लाहौर। लाहौर के ब्यूटी सैलून्स एक बार फिर खुल गए। सैलून मालिकान ने गवर्नमेंट के मुतय्यन करदा SOPs के मुताबिक ब्यूटी सैलून्स खोले हैं। लाहौरी खवातीन की मुश्किलें आसान हो गईं। एक बार फिर से लाहौर में ब्यूटी सैलून्स ने काम करना शुरू कर दिया। हुमा गुलबर्ग में खातीन और मर्दों के ब्यूटी सैलून्स चला रही हैं। जैसे ही सैलून्स खोलने की इजाजत मिली, हुमा ने अपने वर्कर्स और कस्टमर्स के लिए हिफाजती सामान का इस्तेमाल यकीनी बना दिया। सैलून में दाखिल होने वाले हर शख्स का सबसे पहले दर्जा हरारत देखा जाता है, फिर इसे मास्क और सैनिटाइजर दिया जाता है ताकि वो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाए। हमारे वर्कर हमारे लिए बहुत अहम है। हम पूरी तवज्जो दे रहे हैं उनके ऊपर कि कोई भी ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट से मसला हो जाए या मेरे वर्कर से कोई मसला हो। मैं सबके साथ बिल्कुल एहतियात के साथ चल रही हूँ। उमा बताती हैं कि अगर चाप पार्लर खुलने से उनके मुलाजमीन का रोजगार शुरू हो गया, ताहम रमजान में खातीन के लिए हुकूमत के मुतय्यन करदा वक्त पर निकलना कदरे मुश्किल हो जाता है। खातीन भी पार्लर्स खुलने पर बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और बड़ा इंतज़ार था हम लोगों के कब सैलून खुलेंगे और कब हम लोग आएंगे, तो फाइनली खुल गए हैं और अच्छा लग रहा है। सैलून मुलाजमीन का कहना था कि हुमा की तरफ से सैलून वर्कर्स और कस्टमर्स के लिए किए जाने वाले हिफाजती इंतजामात दीगर सैलून मालकान के लिए मिसाल हैं। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। लॉकडाउन में नरमी के बाद इजाजत मिलने के बावजूद शहर के अक्सर जिम बंद रहे। जिम मालिकान और ट्रेनिंग करने वाले नौजवानों ने हुकूमत से इजहार तशक्कुर करते हुए औकात कार तब्दील करने का मुतालबा कर दिया है। जिम खोलने की इजाजत मिलने के बावजूद शहर में जिम बंद रहे। शहर के अक्सर जिम मालकान ने जिम नहीं खोले, जो थोड़े बहुत खुले वहाँ भी चंद लोग ही ट्रेनिंग करते दिखाई दिए। जिम मालकान ने जिम खोलने की इजाजत को खुशाइन करार दिया, मगर औकात कार को मुस्तरद करते हुए इनमें तब्दीली करने की अपील कर दी। रोजे की हालत में रोजा रखा होगा और इस गर्मी में एक्सरसाइज एथलीट नहीं कर पाता, क्योंकि एक्सरसाइज करेगा तो वो डिहाइड्रेशन होने का चांस होता है, वो उसको हीट व्यू भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों को ये टाइमिंग्स जो हैं ये सूट नहीं करते। हमारी हुकाम बाला से, गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि कम अज़ कम आप सर काइंडली हमारे कारोबार को नज़र में रखते हुए, एथलीट की प्रॉब्लम्स को नज़र में रखते हुए उसके मुताबिक हमें SOPs बना के दें। जिम में ट्रेनिंग करने वाले प्रोफेशनल तनसाजों ने भी जिम खुलने पर खुशी का इजहार तो किया, मगर साथ ही जिम के औकात कार शाम और रात में करने की अपील की। ये तो हमारे लिए बिल्कुल टाइम सूट नहीं कर रहा जनाब। क्या करें, हमारे हुकूमत से मुतालबा यही है कि जी इफ्तारी के फ़ौरन बाद लेकर रात 12 बजे तक हमें टाइम दी जाए ताकि हम अपनी एक्सरसाइज कर सकें और दूसरे आने वालों को भी हम मोटिवेट कर सकें। जिम में मैं आया हूँ, मेरा रोज़ा है और मैंने एक्सरसाइज की है, लेकिन 5 मिनट में मैं इतना हीटअप हो गया हूँ कि मुझसे एक्सरसाइज भी नहीं की जा रही और दूसरा मेरी बॉडी को भी थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। जिम मालकान, प्रोफेशनल तनसाज और खिलाड़ी कहते हैं कि ट्रेनिंग का वक्त शाम का है, इसलिए हुकूमत शाम 4 से रात 12 बजे तक जिम खोलने की इजाज़त दे। कैमरामैन अली हसन के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। ये स्टूडियो से फिल वक्त इतना।